ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਸਟਮਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਸਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਰਹੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਏ ਰਹੇ। Structure system. This is made up of many smaller structural subsystems that work together to provide a strong, stable and cost effective structure. ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈ। that is known as that is structural system. Examples of these smaller structural subsystems are roof, walls, floors, framing and foundation. कि बिल्डिंग के जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे रूफ, वॉल, फाउंडेशन तक कुछ भी है, वो सारे इन्हां सिस्टम्स के अंदर आ जाते हैं। What are those structural subsystems? These are made up of many structural elements that work together to provide a strong, stable and cost effective system. पहली डेफिनेशन आप की है स्मॉलर स्ट्रक्चरल सब सिस्टम्स का कॉम्बीनेशन है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर देंगे है। हुण है वो काफ़ी सारी स्ट्रक्चरल एलीमेंट्स हैं जिहड़े कि इकट्ठे जो वर्क करते हैं तो दे प्रोवाइड इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम जिस दे बिहाफ ते बिल्डिंग अपनी रुकी रहती है, खड़ी रहती है, गिरती नहीं। The basic structural elements include beam, column, truss, arc, vault, dome. तो ये जिन्हें भी पार्ट्स हैं यानी कि बिल्डिंग दे, चाहे बीम, कॉलम किसी भी तरीके नाल हैं, वो सारे वो अपने सब सिस्टम्स दे पार्ट दे विच इंक्लूड होंगे है। Types of structure system. We have 4 types of systems. Bulk active structure system, it includes beams and slabs. Surface active structure system like chimneys and cooling towers. Form active structure system, that is suspension bridges and tents and even pneumatic structures जिन्हें आप एयर फिल वगैरह कर सकते हैं। And vector active structure system, that is space frames, trusses, geodesic domes and multi-story buildings. Multi-story buildings ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਦਰ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਰ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਟਰਾਂਸਫਰੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। बेसिकली आप 3 टाइप की जी है फोर्सिस स्टडी करते हैं, टेंशन, कंप्रैशन एंड टॉर्शन और शेयर कह सकते हो। नाउ सेक्शन और बल्क एक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम, बल्क एक्टिव नूं आप सैक्शन एक्टिव भी कह दें हैं। दीज आर द सिस्टम्स ऑफ रिजिड, सॉलिड, लीनियर एलिमेंट्स in which redirection of forces is affected by mobilization of sectional forces, that is load is transferred through the bulk that is mass of the material। जिस तरह एग्जांपल्स हैं बीम, फ्रेम और स्लैब। तो बीम जिस तरह है वो सारा उसका कंक्रीट वर्क जिन्ना है उस रीइंफोर्समेंट प्लस उसका जितना भी कंक्रीट है वो सारा अपना लोड ट्रांसफर करता है टू द साइड बाय कॉलम्स एंड दैन टू द ग्राउंड। तो वो जी ट्रांसफरेंस है, वो जी रीडायरैक्शन है उन्होंने फोर्सिस की, चाहे उस कंप्रैशन है, चाहे उस टेंशन है या चाहे उस कोई शीयर फोर्स लग रही है, उन्होंने अफेक्ट जी करती है फोर्सिस, दैट इज़ बल्क एक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम। बल्क एक्टिव किस तरह काम करता है? सपोज दिस इज़ अ बीम, लोड इज़ एक्टिंग ऑन दैट बीम, चाहे उसका सेल्फ लोड है या कोई लाइव लोड ऊपर आ रहा है। द लोड इज़ being transferred equally in both the directions, half on left side and half on right side, दोनों साइड से ट्रांसफर होता है एंड अल्टीमेटली टू द ग्राउंड। तो इस देख सकते हैं कि जिन्ना भी कंक्रीट है या जिन्ना भी पूरा सैक्शन है बीम का वो सारा ही लोड ਨੂੰ ट्रांसफर कर रहा है।
सारा एक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ रीइनफोर्सिंग बार्स जो कि टेंशन ले लैंदियां हैं। कंक्रीट जिहड़ा है वो कंप्रैशन लैंदा है, स्टील रीइनफोर्सिंग बार्स टेंशन लैंदियां हैं तो अपनी बिल्डिंग या बीम सेफ रहिंदा है जो कि अपर लोड नूं ईजीली ट्रांसफर कर सकता है। बीम के उपर जिहड़े लोड आते हैं दैट आर ऑफ स्लैब्स। जिस तरह कोई लार्जर स्पैनस हैं एंड वी डजंट नीड एनी इंटरमीडिएट कॉलम और इंटरमीडिएट वॉल, तो बड़े हॉल्स वास्ते वी कैन मेक अ ग्रिड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स बीम्स। तो ये जी ग्रिड है ये जिस तरह लोड हाफ दोनों पासे ट्रांसफर हो रहा है सेम ये जी ग्रिड है ये भी उसी टाइप नाल एक्ट करती है। लोड सारी साइड से एक दूजे को ट्रांसफर कर करके एंड के कॉलम्स के उपर ट्रांसफर किया जाता है। द बिहेवियर ऑफ बीम, जिस तरह लोड पै रहा है तो हाफ दिखाया एरो ये शो कर रहा है कि हाफ लोड इज़ ट्रांसफरिंग ऑन दिस साइड एंड दैट साइड। तो जिथे भी लोड पैंदा है उस जगह पर बीम अपनी सैक्शनस नूं कुछ पार्ट्स के डिवाइड करने की उसकी टेंडेंसी है। एक टेंडेंसी वो है बकलिंग की, जो नीचे सैग होएगा, सैगिंग कह सकते हैं आप या झुकना। दूसरी उसके सैक्शनस ब्रेक हो जाते हैं। तो हरेक सैक्शन एक टेंशन च है, एक कंप्रैशन च, या एक अपर तो एक डाउन, डिफरेंट अपोजिट मूवमेंट होंगी है। जी रीइनफोर्सिंग बार्स हैं वो सारी टेंशन रजिस्ट कर दियाँ हैं, वो टेंशन लैके ट्रांसफर कर दियाँ हैं उस फोर्स नूं साइड कॉलम्स से। तो इस स्कैच से सारा क्लीयर है कि जो अपर पार्ट है दैट इज़ कंक्रीट, दैट इज़ इट इज़ टेकिंग कंप्रैशन। आ दोनों एरो एक दूजे वाल मर्ज हो रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, मीन्स देर इज़ टेंशन। तो रीइनफोर्सिंग बार्स वी प्रोवाइड एट सम लोअर डिस्टेंस टू गेट टू resist द टेंशन, और कंप्रेशन और टेंशन इक्वली वर्क करते हैं एंड योर बीम इज़ सेफ एंड साउंड। दूसरा है स्लैब्स वास्ते, दैट इज़ लोड कैरिंग सिस्टम इन फ्रेम्स एंड स्लैब्स। These are two walls. The load is transferring through different courses of that wall. इत्थे फ्रेम स्ट्रक्चर है, दिस इज़ फ्रेम, वन साइड इज़ वॉल। जी स्लैब होएगी वो अपना लोड दोनों साइड से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है ऑन लॉन्ग लेंथन वॉल्स। अगर आप स्लैब डिफरेंट सैक्शन भी पा रहे हैं तो भी हरेक सैक्शन उसका जोड़ा है वो इंडिविजुअली अपना लोड ट्रांसफर करता है ऑन फ्रेम एंड वॉल। इफ दिस इज़ वन वे और वन वे स्लैब एंड दिस इज़ टू वे स्लैब जिस लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ऑन ऑल द फोर साइड्स। चाहे उत्थे कोई ओपनिंग है चाहे विंडो है, इसना कोई फर्क नहीं, उन्हें जो लोड ट्रांसफर करना है वो इक्वली करता है ताकि उसकी जी स्लैब की सैगिंग है वो आप रजिस्ट कर सकी और ना होए। चाहे वो 4 कॉलम सपोर्टेड है, 4 बीम्स आर ऑल अराउंड, 4 वॉल्स आर ऑल अराउंड। तो इतों देख सकते हो कि जो बीम है वो अपना लोड बराबरी ट्रांसफर कर रहा है ऑन दीज कॉलम्स। डाउन एरो इज शोइंग द लोड इज गोइंग फ्रॉम दैट कॉलम टू द ग्राउंड। जी स्लैब है आप देख सकते हो, इफ दिस इज सपोर्टेड ऑन 4 साइड्स इट्स लोड इज मूविंग डाउनवर्ड एट द सेंटर, उसकी टेंडेंसी अंदर सैग हो जाती। इफ इट इज सपोर्टेड ऑन 2 साइड्स then load will be distributed half on both the sides। और जो बीम है वो एंटी रजिस्ट कर रहा है उस लोड नू ताकि अपनी सेफ जी स्ट्रक्चर है वो सेफ रहे। इफ दिस इज़ टू वे स्लैब मीनस लोड दोनों साइड से ऊपर ट्रांसफर हो रहा है इक्वली, लेंथ वाइज एज वेल ब्रेड्थ वाइज। जनरली दिस इज़ स्क्वेयर इन सैक्शन। तो देख जो बीम है वो चारे पासे दे बीम इक्वली रजिस्ट करते हैं। जे आप सैगिंग ਨੂੰ सेव करना है दैन वी कैन प्रोवाइड कॉफर्ड स्लैब। ये जिस तरह पिछे दसिया आप बीम्स की ग्रिड बना लेने हैं एंड स्लैब इज़ बीइंग ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ थिन स्लैब जी है वो कवर कर दें इस इन्हों के हॉलो सैक्शनस ਨੂੰ। तो ये इंडिविजुअल बीम जोड़े हैं वो अपना लोड ट्रांसफर करते हैं ऑन ऑल द 4 साइड्स एंड योर बिल्डिंग इज सेफ। अदरवाइज वी कैन प्रोवाइड दीज टाइप ऑफ स्लैब्स। दिस इज़ फोल्डिड प्लेट एंड दिस इज़ स्पेस फ्रेम, या आप स्टील का स्पेस फ्रेम पा सकते हैं। इन्हों बारे आप अगे स्टडी करांगे। ये स्ट्रक्चर जड़ियाँ हैं वो सैल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हों जी कंप्लीट सरफेस है पूरी की पूरी सरफेस वही अपना लोड ट्रांसफर कर दी है टू दीज बॉटम सैक्शंस जॉइंट्स। ये जॉइंट इन्होंने बीम्स की तरह ही एक्ट करते हैं। सो वी कैन सेव आर सेक्शन ऑफ बीम्स एंड दीज स्लैब्स विल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट देयर लोड्स ऑन ऑल द these points
and it ultimately to the side columns. So what is surface active structural system? These are the systems of flexible or rigid planes or surface itself. ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਐਕਟਿਵ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ 'ਚ ਰਿਜਿਡ ਪਲੇਨ ਜਾਂ ਸਰਫੇਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਰਜਿਸਟ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਔਰ ਸ਼ੀਅਰ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। in which the redirection of forces is effected by mobilization of sectional forces, for example shell of egg, hollow bamboo etc. कि इस जी सरफेस है, जी बाहरली कवरिंग है, वो सारी की सारी रजिस्ट करती है टेंशन, कंप्रैशन और शेयर नूं, और जड़ियाँ फोर्सिज हैं वो रीडायरैक्ट होंदी हैं अपनी जी सैक्शनल फोर्सिज नूं अफैक्ट करदियाँ हैं। जिस तरह एग है उसका जो आउटर कवरेज शैल है वो अपना सैल्फ सपोर्टिंग है, इसी करके शैल वो हार्ड रहिंदा है और काफ़ी टाइम तक वो ब्रेक नहीं होंदा। हॉलो बैम्बू ये स्ट्रक्चर है, जिस तरह बैम्बू की अगर आप ले लें तो किन्ने हैवी स्लैब्स नूं और नूं सपोर्ट कर सकता है। सो एग्जाम्पल ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर फोल्डिड प्लेट स्ट्रक्चर्स, दैट इज सेल्फ सपोर्टिंग सरफेस, and a thin member but flat surface. Folded plate ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ members हैं they are of very thin section and they are self supporting surfaces or structures. Shell structures for example arches, ਇਹ ਦੋ टाइप ਦੀ हैं, single curvature shell that is domes, vaults, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ क्या ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ, and double curvature shell that is hyperboloids. दिस इज़ अ डोम। जे ਜਿਹੜੇ बीम्स हैं अगर वो अपोजिट डायगनल बीम्स आप कर्व फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ एक दूजे नाल टाई कर दीए एंड कवरिंग इज़ डन इन दैट सर्कुलर फॉर्म, सारी उपर सरफेस इस टाइप की कर्व सरफेस पा दीए इन्हां बीम्स के उपर, कर्वड बीम्स के उपर, दैन दिस इज़ अ डोम दैट इज़ हाफ सफेरिकल शैल। दिस इज़ एन आर्क। If we increase the length of that arc, this is known as vault. So this is dome, is which horizontal and transverse दोनों टाइप दियाँ जी रीइनफोर्सिंग बार्स आपां नूं प्रोवाइड करनियां पैंदियां हैं। तो ये देख सकते हो इस विच बार्स क्या है, जिहड़ियां अपर लोड है इसका अपना सैल्फ लोड, इसकी टेंडेंसी नीचे सैग होंदी है, बट क्या करती हैं बार्स अपना लोड ट्रांसफर कर दी हैं फ्रॉम दीज जी लोड ट्रांसफर कर दी हैं दीज बार्स फ्रॉम अपर टू लोअर पार्ट, और जी हॉरिजेंटल मैंबर्स हैं, जी बार्स हैं, उन्होंने सरफेस टेंशन और कंप्रैशन दोनों टाइप नाल एक्ट हो रही हैं। सो जिस करके टेंशन तो कंप्रैशन जोड़ा है वो एक दूजे नूं एंटी सपोर्ट या रजिस्ट करता है और अपना डोम सेफ रहता है, और वो कंप्लीट सरफेस बिकॉज ऑफ दीज रीइनफोर्सिंग बार्स कंप्लीट सरफेस डोम की एक्ट कर रही है लोड नूं ट्रांसफर करने दे विच। जिस तरह इस दिखाया है डोम बनाने का तरीका ये भी है कि अगर आप एक इमेजिनरी ट्रायंगल ड्रॉ कर लेने हैं तो उसकी अपोजिट कॉर्नरस नूं अगर आप सर्कुलर फॉर्म या बीम्स नाल टाई करिए और फिर उस सारी करवेचर नूं आप एक किसी उस ऊपर कोई कवरिंग कर दईए तो दैट इज़ अ डोम। शैल स्ट्रक्चर सिस्टम दे विच दूसरे वॉल्ट हैं या इस टाइप की आर्चिज हैं। दीज आर 3 डिफरेंट आर्चिज एंड दे आर टाइड विद दीज रीइनफोर्सिंग बार्स। इस भी हॉरिजेंटल तो ट्रांसफर दोनों बीम्स दोनों बार्स पाने हैं और फिर उसनों आप एक कंक्रीट मटीरियल के नाल आपां नूं शैल नूं कवर कर देना है, एंड दैट मटीरियल इज़ वेरी थिनर इन सैक्शन। दिस इज़ अ वॉल्ट। ये देख सकते हो इस लॉन्गिट्यूडनल बार्स के उपर लॉन्गिट्यूडनल इस टेंशन है और ट्रांसफर्स टेंशन भी क्रिएट हो रही है। तो जी लॉन्गिट्यूडनल सैक्शंस बन गए वो हरेक सैक्शन डिफरेंट स्लैब या बीम की तरह एक्ट करेगा। तो जिस तरह पिछे पढ़िया कि उस बीम के डिफरेंट सैक्शंस ब्रेक होने की कोशिश करते हैं। सो एक नीचे जाता है, एक स्लिप करता है, एक अपवर्ड वो फोर्स लगती है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, तो अपोजिट फोर्सेस रजिस्ट करती हैं और सारा कंप्लीट लोड जोड़ा है इक्वली ट्रांसफर होता है कॉर्नर से। सिमिलरली जी लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं उन्होंने करके इन्होंने वर्टिकल स्लैब की तरह भी सैक्शंस बन जाते हैं। सो ये भी अपोजिट वर्क करती हैं जिस तरह इस एरो मार्क शो कर रहे हैं। सो इस क्योंकि ट्रांसवर्स से लॉन्गिट्यूडनल दोनों फोर्सेस हैं, सो योर
vault will be safer enough. These are different examples of shell structures. ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨਫੋਰਸਿੰਗ ਬਾਰਸ ਪਾ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੈਲ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਵੇਚਰਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ of shell structure, Opera House situated at Sydney। ਇਹ ਜਿਹੜੀ shell ਹੈ without any support or column support at the end, complete surface is taking the load because of longitudinal and transverse reinforcing bars। ਸਾਰਾ ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਰਫੇਸ ਲੋਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਬਾਟਮ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ without any support। फिर आप पढ़े हाइपरबॉलिक स्ट्रक्चर। सो व्हाट आर हाइपरबोलॉइड स्ट्रक्चर्स? जे आप सिंपली एक प्लेन पेपर ले लीए, सपोज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पेपर, वी टाई द टू अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ पेपर इन द ग्राउंड एंड टू आर फ्री, दो ऊपर जा रहे हैं, तो ये जी शेप बन जाएगी आउटर करवेचर, दैट विल बी हाइपरबोलॉइड। तो इस भी आप की करना है, जो कंक्रीट च स्ट्रक्चर तैयार करनी है, रीइनफोर्सिंग बार्स इस भी लॉन्गीट्यूडनल से ट्रांसफर्स फॉर्म च पई जाएगियां, और वो जी बार्स हैं वो टेंशन और कंप्रैशन दोनों में इक्वली एक्ट करदियां हैं, तो सरफेस जोड़ा है लोड ट्रांसफर करता है। आ देख सकते हो इतने अपना ये फोर्स इस साइड से जा रही है, तो ये फोर्स इन्होंने बार्स के अंदर ही सरफेस मूव कर रही है एंड डायरेक्टली टू द ग्राउंड। सो व्हाट इज़ हाइपरबोलॉइड स्ट्रक्चर? ये जी स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज़ हाइपरबोला। इस टाइप की हाइपरबोलॉइड स्ट्रक्चर्स आर आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स डिजाइंड विद हाइपरबॉलिक ज्योमेट्री। इन्हों आप हाइपरबॉलिक ज्योमेट्री के नाल डिज़ाइन करते हैं इस कैलकुलेशंस के तौर पर। ऑफन दीज आर टॉल स्ट्रक्चर्स सच एज टावर्स, वेयर जोड़े अपने कूलिंग टावर्स हैं, चिमनीज़ हैं, पावर प्लांट वगैरह दियाँ, वो आप हाइपरबॉलिक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म च तैयार करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी टॉल, where the hyperboloid geometry's structural strength is used to support an object high off to the ground। इस ऑब्जेक्ट को आप सपोर्ट करना है जो ऊपर पूरा लगे है, एंड इट इज़ वेरी हाई एट वेरी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। बट हाइपरबोलॉइड ज्योमेट्री इज ऑल्सो ऑफन यूज्ड फॉर डेकोरेटिव इफेक्ट एज वेल एज स्ट्रक्चरल इकोनॉमी। और ये स्ट्रक्चरली आपू इकोनॉमिक भी पैंती है स्ट्रक्चर जी है, और aesthetically भी it's an appealing structure। What are the properties of hyperboloid structures? मेन प्रॉपर्टी यदि ये है कि आप हॉरिजेंटल, जिस तरह रिंग्स दिख रहे हैं, हॉरिजेंटल बार्स एंड वर्टिकल बार्स का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। वर्टिकल बार्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ऊपर डाया घट है, नीचे ज़्यादा, और उसमें आप इस टाइप नाल टाई करना है, एंड दैन डायगनली टाई करना है, एंड दैन दे आर टाइड विद हॉरिजेंटल बार्स, तो ऑटोमैटिक एक हाइपरबोलिक की शेप ले लेंदी है। हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर्स हैव अ नेगेटिव गसियन करवेचर। दिस इज़ जी अपोजिट करवेचर है, दिस इज़ नेगेटिव गसियन करवेचर, मीनिंग दे कर्व इनवर्ड रादर दैन आउटवर्ड। वो बाहर की बजाय अंदरले पासे कर्व हो रही है, और बीइंग स्ट्रेट, ना ही ये बिल्कुल सीधी है, ना ही बाहरले पासे कर्व हो रही है, ये अपोजिट इनवर्ड कर्व है। एज डबली रूल्ड सरफेसिज they can be made with the lattice of straight beams। These are straight beams, hence are easier to build, बनाना भी easy है, and all else equal stronger than curved surfaces that do not have a ruling and must instead be built with curved beams। ये बाकी टाइप की जी सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेट बिल्डिंग्स हैं, उन्होंने नालों बहुत ज़्यादा सेफर और स्ट्रोंगर रही है। This is another view of some hyperbolic structure। These are horizontal bars, that is horizontal beams। ऊपर के डाया कट, फिर आप डाया इंक्रीज कर सकते हैं, तो दिस शेप विल बी हाइपरबॉलिक। एंड दीज आर द इनक्लाइंड स्ट्रेट बार्स हैं, वर्टिकल, बट उन्होंने आप थोड़ा इनक्लाइंड फॉर्म टाई करते हैं, वो जी शेप है वो अपने को हाइपरबॉलिक आ जाती है। दिस इज़ द इनर व्यू ऑफ सम हाइपरबॉलिक स्ट्रक्चर। एक आप फोल्डेड प्लेट पढ़ी है, दैन व्हाट आर फोल्डेड प्लेट स्ट्रक्चर सिस्टम? दिस इज़ फोल्डेड प्लेट। जी आप स्लैब नू इस तरह फोल्ड कर दईए जिस तरह कोई पेपर फोल्ड किया जाता है, एंड लोड इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू दीज सरफेसिज, इनक्लाइंड सरफेसिज
और ये ਜਿਹੜੇ कॉर्नर्स नीचे एजिज हैं इन्हों के रिज है या वैली है, ये एरियाज एक्ट करते हैं बीम की तरह एंड ट्रांसफरिंग द लोड टू द साइड बाय कॉलम्स और एट द एंड सपोर्ट्स, दैन दीज आर नोन एज फोल्डिड प्लेट स्ट्रक्चर्स। इस भी आप कंक्रीट स्ट्रक्चर के सेम वही है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल रीइनफोर्समेंट्स या लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स रीइनफोर्समेंट कह सकते हो, और सारी सरफेस इस इक्वली एक्शन और अपना जोड़ा है टेंशन और कंप्रैशन लेंदी है। ये भी हरेक स्लैब इंडिविजुअल बीम की तरह एक्ट करती है। वी कैन हैव नंबर ऑफ शेप्स, देख सकते हो इस टाइप की एक स्लोप इधर एक अपोजिट शेप्स वी कैन डिज़ाइन, वी कैन हैव दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जनरली म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज या सेंट्रल लाइब्रेरी वगैरह इस टाइप की स्ट्रक्चर्स पार्किंग लॉट्स के भी डिज़ाइन की जाती है। Now this is an example of dome roof, one that is of St. Paul Cathedral and this is St. Peter Cathedral. The dome देख सकते हो, this is made up of or made up with the help of inclined circular ribs। इन्हों पर रिब्स कहने हैं। रिब्स के उपर सारी कवरिंग जी है आप स्टोन या उस स्लैब की जो भी मटीरियल आप पा दें। हुण इसकी टेंडेंसी है नीचे सैग होने की। ये साइड्स तो ताही नीचे सैग ताही होएगा जे ये साइडों तो ये सरफेस यदि बस्ट होए, उस वास्ते आप एक रिंग बीम साइड पर आप कास्ट कर दें हैं। तो रिंग बीम जिस तरह कड़ा कह सकते, एक तरह का कड़ा की तरह काम करता है। तो ये जदों तक ये एजिज यदि ब्रेक नहीं होणगियां, ये सैग नहीं होएगा और ये बीम जोड़ा है वो लोड ट्रांसफर कर रहा है टू दीज वर्टिकल कॉलम्स एंड यूर बिल्डिंग इज डोम इज सेफ। तो उपरला इन्ने हैवी स्ट्रक्चर का लोड भी ये डोम बड़ी ईजिली सैटल कर लेंदा है विदाउट एनी इंटरमीडिएट सपोर्ट, दैट इज़ विदाउट एनी सेंट्रल कॉलम। सिमिलरली in this structure of St. Peter Cathedral. This is view of long span roof structure ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ vaulted ceilings हैं। vault ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਕਿ ਆਰਕ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਵਧਾ ਦਈਏ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਨਲ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ vault। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ vault ਰਿਬਸ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੋजिट ਤੇ और ਈਵਨ ਡਾਇਗਨਲ ਵੀ ਆ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ टाई कर ਦਿੱਤਾ डायगनली। सो डायगनली भी रिब्स अटैच हो रही हैं और सामने सामने भी, और इवन हॉरिजेंटली ट्रांसवर्सली एज डायगनली। तो इस दे विच जिहड़ियां हैं अपनी वॉल्ट जी है वो सेफ रहिंदी है और टेंशन, कंप्रैशन और शेयर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस आर बीइंग ट्रांसफर्ड थ्रू दीज रिब्स और द सरफेस कवरिंग इटसेल्फ। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेल स्ट्रक्चर। ये ओपनेबल रूफ्स हैं। आज शैल देख सकते हो ये सारा कंप्लीट शैल है। दिस इज अनदर शैल, दिस इज थर्ड शैल। तो ये जी सारी सरफेस है इत्थे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स बार्स होने करके ये जो शैल है कंक्रीट वो सारा लोड ट्रांसफर कर रहा है। मतलब लोड जो सारा का सारा इस पूरी सरफेस के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है टू द साइड बाय सपोर्ट्स। जिस तरह इत्थे देख सकते हो आप पूरा शैल आ कवरिंग, एंड दिस सैक्शन इज़ वेरी थिनर एज कंपेयर टू नॉर्मल RCC स्लैब। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्डिड प्लेट। इस टाइप की रूफ की आप स्ट्रक्चर तैयार करती तो स्लैब ਨੂੰ ही फोल्ड करता। तो आ जी यदि रिज है और ये वैली है दे आर एक्टिंग एज द बीम्स इटसेल्फ। इतों बड़ा क्लीयर है दिस इज़ अ कॉलम एंड इट सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर जंक्शन जी दो पासे की स्लैब्स आ रही हैं। तो इत्थे कोई भी होर बीम नहीं है। तो ये जो कॉर्नर है या जी स्लैब्स हैं वो क्योंकि बीम की तरह ही एक्ट कर रही हैं, सो दे डायरैक्टली transferring their load to this column and then column to the lower beam or to the ground itself. Similarly इस जंक्शन के ऊपर देख सकते हो इत्थे ये बीम से सपोर्टेड एंड then to the column. Now form active structure system। ये पीछे वैब देख रहे हो, इस पिक्चर के वैब दिखाया है। ये जो वैब है ये फॉर्म एक्टिव का ही पार्ट है जिसदे विच ये जिहड़ी थ्रैड्स हैं या फाइबर है उन्होंने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਈਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਥ੍ਰੈਡਸ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਈ ਇਨਸੈਕਟਸ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਪਕੜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੈਬ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਟੈਂਸ਼ਨ ਸਸਟੇਨਡ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਕੇਬਲਸ ਔਰ ਇਨ ਦੀਜ਼ फाइबर्स। तो यही जो पिछला वैब है सारा इस दे बेस से ही अपना केबल सिस्टम है, केबल स्ट्रक्चर्स हैं जिन्होंं आप फॉर्म एक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम्स कहने हैं। दीज आर सिस्टम्स ऑफ फ्लैक्सीबल
नॉन फ्लैक्सीबल मीनस क्योंकि फ्लैक्सीबल है, लेंथ ज़्यादा है इन्हां दी। नॉन रिजिड मैटर, बहुत हार्ड नहीं है। इन विच द रीडायरेक्शन ऑफ फोर्सेज इज़ इफेक्टेड बाय पर्टिकुलर फॉर्म डिज़ाइन एंड करैक्टरिस्टिक फॉर्म स्टैबिलाइजेशन। पर्टिकुलर ने जी किसी टाइप की फॉर्म आप तैयार की तो लोड इन्होंने केबल्स के थ्रू या इस फॉर्म के थ्रू ट्रांसफर होना है, दैट इज़ उन्होंने आप रीडायरैक्ट करना उस फोर्सिस नूं जिहड़ियां टेंशन कंप्रैशन है। दिस इज़ फॉर्म एक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम। एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर केबल स्ट्रक्चर्स, टेंट स्ट्रक्चर्स, न्यूमैटिक स्ट्रक्चर्स। न्यूमैटिक दे आर जनरली इनफ्लेटेबल आर्चिज जिन्हें आप एयर फिल कर सकते हैं, एंड आर्च स्ट्रक्चर्स। दीज आर पैरल केबल स्ट्रक्चर्स इन फॉर्म एक्टिव स्ट्रक्चर सिस्टम। इन्हां च क्या होंदा है कि जिहड़ी साइड सपोर्ट्स हैं, कॉलम्स हैं, उन्हां उपर केबल्स टाई की जांदियां हैं और वो एजिस के उपर एंड्स के उपर ग्राउंड के विच उन्होंने टाई कर दिंदे हैं। उस तो बाद इन्हां केबल के विच पूरी पहलां तां उरे ही पूरा स्ट्रैच करना उन्होंने, टेंशन आ जाए उस मैक्सीमम, एंड दैन वर्टिकल सपोर्ट्स या वर्टिकल केबल्स नाल उन्होंने फिर आप फरदर टाई करना है विद दैट फ्लोर। इत्थे जिहड़ा भी कोई फ्लोर आप पाना है तो उस नाल ये ऑटोमैटिक सैग हो जाएगी और इस इन्नी ज़्यादा टेंशन और कंप्रैशन जो टेंशन है वो क्रिएट हो जाएगी कि केबल जी है वो स्टिफ मटीरियल की तरह काम करती है, बहुत स्टिफ हो जाती है और योर स्ट्रक्चर इज़ सेफ। दिस इज़ रेडियल केबल जिस रिंग बीम्स के थ्रू आप डायगनल केबल जी हैं डबल लेयर्ड अटैच करनी है और उन्होंने आप सपोर्ट्स फिक्स कर देने हैं ताकि वो जी है उस जी टेंशन है वो मैक्सीमम आ जाए और ये स्ट्रक्चर अपना बिल्कुल केबल स्टिफ रहिंदियां, सेंटर च ही लगियां रहनगियां, वो नीचे नहीं सैग होणगियां। दैन बाई एक्सियल केबल्स विद द हैल्प ऑफ आर्चिज। तो देख सकते हैं ये देयर आर टू आर्चिज जॉइंड विद दीज केबल्स। पहला आप ट्रांसफरस केबल्स पाइयां, दे आर टाइड विद द ग्राउंड। उस तो बाद उन्होंने लॉन्गीट्यूडनल केबल्स नाल इन्नी अच्छी तरह इन्नी टाइटली उन्होंने टाई कर दिया कि उन्हें ऐटोमैटिक ही इन्हां दे विच जिन्नी भी डिफ्लैक्शन है या जिन्नी भी इन्हां सैगिंग होंदी या इलोंगेशन की प्रॉपर्टी है उस मैक्सीमम इलोंगेट करके उन्होंने आप नीचे चुकाता और जी ये स्ट्रक्चर सेफ बनेगी वो बहुत ज़्यादा स्टिफ और हार्ड होएगी। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ पैरेलल केबल सिस्टम। ये देख सकते हो इत्थे ये कैंटिलीवर्ड स्लैब्स हैं विच आर सपोर्टेड विद दिस टाइप ऑफ स्पैशली डिजाइंड कॉलम। ये ऊपर पासे ही उठी रहे इस करके आप इत्थे केबल्स नूं टाई करता एट सम अल्टरनेट डिस्टेंसिस। सारी केबल्स एक पॉइंट पर आके मीट हो रही हैं। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड क्योंकि हुण ये स्लैब की टेंडेंसी है नीचे गिरन की, इन्हें एंटी रजिस्ट करना इन्हां केबल्स ने, तो जिहड़ा नीचे गिरना है वो बजाय उन्होंने लोड ट्रांसफर करना है अपोजिट डायरैक्शन दे विच, उल्टा लोड जाता है अपवर्ड टू दिस मैंबर वर्टिकल मैंबर एंड दैन टू द ग्राउंड। सिमिलरली फ्रॉम दिस साइड एंड योर स्ट्रक्चर इज़ सेफ। इत्थों भी देख सकते हो पिक्चर क्लीयर है कि ये जो लोड आ रहा है स्लैब का वो अपोजिट डायरैक्शन से जाके अपवर्ड मूवमेंट है, टेंशन ऊपर जा रही है एंड दैन टू द सेंट्रल सपोर्ट। अगर वो हॉरिजेंटल इस टाइप की केबल्स हैं तो जैसे केबल के वर्टिकल मैंबर इन्ने लगाते कि वो केबल के अंदर सैगिंग होगी, इत्थे सैक्शन छोटा है सेंटर जाके लार्जर है तो इस करके ये हल्की जी करवेचर है। आ देख सकते हैं इत्थे सैगिंग, तो इन्हों ने इत्थे कंप्रैशन के चांसिस है और यदा अपर पार्ट जोड़ा है वो टेंशन हो जाएगा ऐटोमैटिक ही और लोड अपना ट्रांसफर ईजिली हो जाता है एंड योर स्ट्रक्चर इज़ सेफ। Then example of cable structure is suspension bridges। पहला केबल्स क्या होंगी हैं, स्मॉल क्रॉस सैक्शन एज कंपेयर टू लेंथ, क्योंकि उन्होंने डाया बहुत छोटा होंदा है, जनरली 1.5-2 इंच का आप रखते हैं और लेंथ बहुत ज़्यादा है। ऑफ द केबल मेक्स केबल फ्लैक्सीबल, पूरी फ्लैक्सीबल है, रोल हो सकती हैं एंड इज़ वीक इन कंप्रैशन। और ये जी केबल्स हैं वो कंप्रैशन बहुत ज़्यादा वीक हैं, दे आर स्ट्रोंगर इन टेंशन। उन्होंने इन्ना आप टाई करना है, इन्ना स्ट्रैच करना है कि इस द ईल्ड पॉइंट तक इन्हों आप स्ट्रैच करना है। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ सस्पेंशन ब्रिज। तो देख सकते हो इत्थे पहला ये 2 सपोर्ट्स हैं उन्होंने हॉरिजेंटल केबल के नाल टाई करके साइड के उपर एंड्स के उपर टाई कर दिता गया ग्राउंड च। उस तो बाद वर्टिकल सपोर्ट्स नाल इस टेंशन तक उन्होंने खिंचना है कि नीचे जड़ा ये ब्रिज आ रहा है उस नाल उन्होंने आप टाई करता। हुण इहदी टेंडेंसी केबल नूं इन्हें उपरों भी खिंच के सैग कर दिता है, इधरों दी नीचे ब्रिज नूं उपर चक के रखेगा तो वो एक दूजे नाल आपस ची एंटी रजिस्ट होके या रजिस्ट होके ये सपोर्ट सैल्फ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बन जाता है और टेंशन जी है ट्रांसफर करती है थ्रू दीज केबल्स टू द
these supports. Similarly here ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਇਸ ਬੀਮ ਦੇ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕੇਬਲਸ ਨਾਲ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵਰਟੀਕਲੀ ਟਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ. Similarly here this is a bridge, this is cable, these are vertical cables tied from this main cable to the floor.